ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। पापा कहते हैं जो कुछ आपका ही है बेटा, लेकिन जो आप कर रहे हो वो सारी दुनिया का है और सभी को उसका सुख मिले। वो पैसा वही कामयाब होता है जिससे दूसरे को हम सुख दे। अपने लिए तो सूर कुत्ते भी जिंदगी जी लेते हैं। पंजाब में मतलब ऐसा कोई घर नहीं होगा जो ना जानता हो भाई राम सिंह जी हैं। ਬਹੁਤ ਅਸੀਸਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ। अब हमने 11,000 कैंपर मंगाए थे, लेकिन वो कुछ कम पड़ रहे हैं तो हमने 6,000 कैंपरों का और ऑर्डर दे दिया है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। भाई जी अब यहाँ 1.25 से 1.5 लाख आदमी इस टाइम भी पड़ा है लगभग, और 1.25 से 1.5 लाख आदमी कहना आसान होता है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਬਾਅ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ? ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ? चाहे मेरा होटल तोड़ दे या मेरा मकान तोड़ दे या मेरा कुछ भी कर दे, मेरे को चिंता नहीं है। मैं लंगर कोई ऐसे नहीं चलाता भी खाली लंगर रख दिया दाल फुल्का ना। वहाँ बर्फी, रसगुल्ले, जलेबी, टिक्की हर चीज़ चलती है। अब मतलब शौक है तभी तो चलती है। याद तो आएगी, और मुझे भी शायद आंदोलन खत्म होने के बाद भी मैं 15-20 दिन तो इनको जाने नहीं दूंगा। मैं यहीं रुको यार, तुम चले जाओगे तो कैसे अच्छा नहीं लगेगा। पहले दिन से लंगर लगा लो, आप पार्किंग लगा लो, नहाना धोना सोना रहना, गद्दा कपड़ा कंबल। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਢਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਹ ਜਾਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा जी, सब परमात्मा है कराने वाला, और परमात्मा ने कुछ सेवा बख्शी है तो करनी चाहिए, और सेवा से बढ़ के कुछ नहीं है। सेवा है तो मतलब जब मन को शांति मिलती है। जब ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ? ये सोचने वाली बात ही नहीं जी, किसान है तो हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा इस बारे में। तो इस चीज़ के लिए तो कोई सोचने वाला तो कोई काम ही नहीं है। तो जी, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਪ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ऐसे है जी, परिवार की सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। तो परिवार की फुल सपोर्ट है, कोई परेशानी नहीं है, और परिवार साथ है तभी सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਮਤਲਬੀ ਆ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂ? जी, काम सारी उम्र काम ही तो करने हैं, हर बंदा करता है, लेकिन ये तो कुछ समय होता है, वो भी टाइम संभालना चाहिए। जब एक परिवार पे, एक भाईचारे पे, एक इंसानियत पे कोई टाइम ख़राब आए तो उसमें हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम जो हम कर सके वो करें। जो कोई कुछ कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कर लेगी जो करना है, लेकिन हम जो कर सकें
अगर हम किसी के काम आ सके तो हमारा सौभाग्य है। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਗ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੇ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ऐसे जी, जिस दिन से आंदोलन स्टार्ट हुआ था, हम पहले दिन से किसान भाइयों के साथ हैं। पहले दिन से लंगर लगा लो, आप पार्किंग लगा लो, नहाना धोना सोना रहना, गद्दा कपड़ा कंबल रजाई, जो भी जिस चीज़ की टाइम पे जरूरत पड़ी, अब गर्मी आ गई तो अब एसी रूम वगैरह सारा एसी हाल वगैरह हर चीज़ किसानों के लिए। ਇਸੀ ਰੂਮਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ हाँ, अभी बनाए हैं, बल्कि अभी वो तो कोई परमात्मा ने बस, अब आंदोलन लंबा चलना है और बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं, माताएं ऐसी होती हैं, गर्मी इतनी है तो परेशान बीमार भी हो सकते हैं, तो सारा हिसाब लगाना पड़ता है। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, फादर साहब आज भी खेती करते हैं, उनका मन खेती में ही लगता है और मैं बड़ा खुशी होती है मेरे को। मैं जब मतलब कभी कभार मौका मिलता है, वो डांट के कहते हैं भाई आज मेरे साथ चलना है, आज तुमने काम पे नहीं जाना, तो अच्छा लगता है। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ? वो करवाने वाले वही है जी। ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੇ? मेरे को अपने माँ बाप पे मान है, उनको मेरे ऊपर है या नहीं है, मैं मेरे वो लिए वो बात वैल्यू नहीं रखती, लेकिन मुझे अपने माता पिता पे पूरा गर्व है कि मेरे को ऐसे संस्कार दिए हैं और मेरे को इतनी सेवा करने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया है और मेरा पूरी मतलब सहयोग करते हैं मेरे साथ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ऐसे जी, मैं अब जैसे सभी जानते थे, लगभग 4-5 महीने से 5 महीने हो गए हैं लंगर चल रहा था अपना सारा कुछ, तो फेसबुक वगैरह पे पहले शुरू से ही वीडियो डल रही हैं लगातार, तो सभी किसान भाइयों के पास लगभग ऐसा कोई किसान नहीं होगा जिसके पास मेरा नंबर ना हो। तो मेरे पास काफ़ी टाइम से कॉल आ रही थी कि भाई हमें पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पीने के पानी की, और हम बिल्कुल परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। तो हमने उस चीज़ को विजिट किया, देखा, लगभग हमारे 5-6 दिन इसी काम पे लगे। हम हर धरने पे गए और हमने देखा सच्चाई, रियलिटी ग्राउंड पे जाके क्या है। तो जब हमने देखा तो वाकई में रियलिटी एक दिन भी नहीं आदमी काट सकता, मतलब अगर सही देखे तो एक दिन भी आदमी नहीं काट सकता पीने के पानी के बगैर। तो वो देख के हमारे से रहा नहीं गया। तो अब ये सेवा भी मतलब कोई प्रोजेक्ट भी बड़ा था, अब हमने सोचा भाई ये तो बड़ी दिक्कत होगी, तो मैंने फादर साहब से बोला, मगा जी पानी की दिक्कत है और कोई नहीं देख रहा उनकी तरफ, सब अपना अपना लगे हुए हैं। तो फादर साहब बोले, बेटा जब तूने इतना, या तो खूजेगा सारा खूजेगा या फिर परमात्मा सेवा कम से कम हमारी कबूल होगी। तो हमारी कुछ ज़मीन पड़ी थी पेट्रोल पंप के लिए, मैंने ले रखी थी। 100 सपने होते हैं आदमी के। मेरे को दुख भी है और खुशी भी है कि मैंने पता नहीं कैसे कैसे जोड़ तोड़ करके वो ली थी, लेकिन जब खुशी ये है कि भाई मेरी वो प्रॉपर्टी लगा लो, पैसा लगा लो, जो असली सेवा है उसके लिए यूज होगी, तो बड़ा सुकून भी मिलता है। और अब हमने 11,000 कैंपर मंगाए थे, लेकिन वो कुछ कम पड़ रहे हैं, तो हमने 6,000 कैंपरों का और ऑर्डर दे दिया है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ? भाई जी, अब यहाँ 1.25 से 1.5 लाख आदमी इस टाइम भी पड़ा है लगभग, और 1.25 से 1.5 लाख आदमी कहना आसान होता है, उनके लिए अगर जिम्मेवारी देना तो बहुत आसान है, और जिम्मेवारी लेना बहुत मुश्किल है। जब हमने जिम्मेवारी ली है ना कि हम पानी की सेवा ली है हमने, तो उसको निभाना है हमने उसको ऐसे नहीं है भाई हमने फॉर्मेलिटी के लिए ली है, वो भाई हम नहीं उससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो देखी जाएगी, अभी तो परमात्मा भाई गुरु बस जैसे कैसे है। अब एक बारी गाड़ी पहिया रिड़क जाए तो बेस्ट ही बेस्ट है। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਤੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ऐसा जी, एक तो मैं अपने आप को भाग्यशाली भी मानता हूँ और वो कहते हैं ना भाई दुर्भाग्यशाली भी मानता हूँ। कि भाग्यशाली तो ये हूँ कि मैं सेवा कर रहा हूँ, और दुर्भाग्य है कि मेरा भाई नहीं है, और भाग्य ये भी है कि अगर भाई होता शायद मैं ना कर पाता। मैं अकेला ही हूँ फादर साहब के,
तो उसके लिए मेरे को कभी नहीं जरूरत पड़ी ज़्यादा सर्टिफाइड करने की। क्यों, पापा कहते हैं जो कुछ है आपका ही है बेटा, लेकिन जो आप कर रहे हो वो सारी दुनिया का है और सभी को उसका सुख मिले। वो पैसा वही कामयाब होता है जिससे दूसरे को हम सुख दे। अपने लिए तो सूर कुत्ते भी ज़िंदगी जी लेते हैं, वो ज़िंदगी कुछ नहीं होती। सुबह उठे, खा लिया, पी लिया, रात को सो गए। ज़िंदगी वो है जो हम कुछ तो कर सके किसी के लिए। तो उस ज़िंदगी का जो आनंद है, जो त्याग है, बलिदान है, तो वो तो एक अलग ही है। उस चीज़ में मतलब किसी चीज़ के भी साथ उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हम। ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ऐसा जी, हमें तो बड़ी खुशी है। मेरा कारोबार था लगभग 4-5 लाख की सेल थी, मैंने खुद बंद की है। मेरे को किसानों ने नहीं बोला बंद करो आप, ना कहीं से कोई प्रेशर था, बल्कि प्रेशर है तो गवर्नमेंट का है, भाई आपने क्यों ऐसा किया। ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ? दबाव बांधे। हरियाणा ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਖੜੀ ਸਰਕਾਰ? हरियाणा की है, खैर अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से तो नहीं कोई मैसेज आया मेरे पास अभी, लेकिन हरियाणा से किस तरह का प्रेशर है मैं समझना चाहूँगा। बस अब ये आप समझ सकते हो, बीजेपी गवर्नमेंट है, चलो वो एक अलग लड़ाई है, लड़ेंगे उसमें। अब वही है, जब किसान भाइयों का दुख सुनते हैं ना तो बड़ा दर्द आता है। उनका कहना है कि भाई हम पहले तो यहाँ काजू बादाम के लंगर चलते थे, अब कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं रहा। राणा जी इसको संभालो प्लीज़, हमें तो बड़ी दिक्कत आ रही है। तो वो शब्द मतलब दिमाग में मेरे को 2-3 दिन सोने नहीं दिया उन्होंने, और अब भी मैं नहीं सो पा रहा हूँ, ये एक रियलिटी है। लेकिन सोऊंगा तो उस दिन जिस दिन सभी को कम से कम पानी तो सबको पिला दूँ मैं, और तो नहीं कुछ हो सकता मेरे से ज़्यादा। मैं इतनी पब्लिक को नहीं खिला पिला सकता, लेकिन कम से कम एक पानी की सेवा तो एक ऐसी है। चलो ठीक है, इसमें लगभग 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट है। अब कुछ था वो लगा दिया, कुछ और कर रहे हैं कोशिश। कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ सभी भाइयों से, प्लीज़ इसमें थोड़ा सा मेरा सहयोग करें। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे। ये सेवा बहुत बड़ी है, ये जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। हाँ, इसमें ये है, अगर एक बारी ये सिस्टम रोटेशन में आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं, परमात्मा ने इतना मेरे को दे रखा है कि मैं इसको घुमाता रहूँगा। अब इस टाइम थोड़ी सी दिक्कत है, तो प्लीज़ आप जो भी आपसे बन सके, जो एक स्टार्टिंग थी उसको प्लीज़ ढीला ना करें। पहले यहाँ मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी होती थी, आज यहाँ पानी से के लिए भी जिम्मेदार तरस रहे हैं। बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं, तो थोड़ा सा सहयोग करें। बाकी आपको यहाँ राणा जी की तरफ से कभी भी कंप्लेंट नहीं आएगी। जब तक आंदोलन चलेगा, आखिरी दिन तक राणा जी ऐसे ही खड़े हैं और ऐसे ही रहेंगे। तो बस मैं थोड़ा सा यही विनती करता हूँ, अगर पॉसिबल हो तो कुछ ना कुछ सहयोग करें। आपका थोड़ा सा सहयोग मेरे लिए एक एनर्जी का भी काम करेगा, और एक मेरे को मतलब थोड़ी हिम्मत बढ़ती है। अब घुमा फिरा के सारी मतलब पैसे पे बात अटक जाती है। अब इतना मतलब 2-2.5 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट है, और करनी ज़रूरी है। टाइम भी नहीं है ना अपने पास। अगर टाइम हो, अब मार्केट इतनी डाउन है कि मैंने और भी कोशिश की भी थोड़ा बहुत कुछ कहीं से हेल्प होए, भाई ज़मीन जमून कोई सेल हो जाए, या 1-2 शोरूम पड़े हैं मेरे, लेकिन अभी कस्टमर नहीं है किसी भी गाँव में। तो और इस सेवा के लिए हम वेट नहीं कर सकते ज़्यादा। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ऐसा है जी, अब क्या करें, किसके भरोसे छोड़े। अब जिसके भरोसे पब्लिक उठ के आई है, परमात्मा ही है। और परमात्मा ने मेरे को पता नहीं क्यों आगे कर दिया, वे सारे का आपने संभालना है। उन्होंने कुछ क्वालिटी देखी होगी, मतलब पब्लिक ने कुछ देखा होगा। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਆ। जिम्मेवारी मेरी लगाई है, तो मैं तो मतलब सौभाग्यशाली भी मानता हूँ। और मेरे को थोड़ा दर्द है कि मैं इस टाइम डगमगा रहा हूँ, मतलब मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। दिक्कत वही है भाई, प्रोजेक्ट बड़ा है, जिम्मेवारी ली है तो निभाना तो पड़ेगा। और निभाने के लिए जो मतलब इस टाइम बस अब देखते हैं, परमात्मा खुद करेगा, जैसे भी करेगा। अब क्या कर सकते हैं, सो क्या कह सकते हैं। ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ NRIs ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ।
बस मैं हाथ जोड़ के आपसे ये कहता हूँ, प्लीज़ इसमें थोड़ा सा सहयोग करो। ये सेवा बड़ी ज़रूर है लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। और मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि आपको राम सिंह राणा की तरफ से एक कल्ले बंदे से भी ये नहीं सुनने में आएगा कि भी उन्होंने जिम्मेवारी ली थी और किया नहीं। हर एक बंदा यही कहेगा आपको कि भाई वाकई में कुछ करके दिखाया है। लेकिन मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट प्लीज़, आप जो भी आपसे बन सके, कोई ज़रूरी नहीं है भाई ज़्यादा थोड़ा नहीं होता, एक सहयोग होता है, हाथ पकड़ना होता है भाई का। तो थोड़ा सा अगर हो जाए तो परमात्मा। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ? मैंने ये ना मैंने उनको बोला ना उनकी तरफ से कोई मेरे को ऑप्शन आया, तो चलो कोई नहीं, वो अपनी ठीक है, अपनी जगह है, हमें उनको नहीं ज़्यादा कह सकते। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? बिल्कुल, जो भी है कारण मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा ही करने वाला है। उस परमात्मा ने पता नहीं मेरे को ही क्यों आगे कर दिया। मैं सोचता हूँ खुशी इतनी मिलती है कि है देखो 1.5 लाख आदमी पड़ा है, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इतने बड़े बड़े सिस्टम हैं लोगों के, लेकिन एक ड्यूटी जो बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम था वो मेरे को सौंपा है। तो मैं तो मेरे पास मतलब क्या खुशी होगी मेरे को जिस दिन ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। मैं ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ। दुख यही है कि मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ पूरा। मतलब मैं यही सोचता हूँ, हे परमात्मा जो सेवा पकड़ी है मैंने उसको पूरी करवा, कैसे भी करके कराओ, इसको पूरी कराओ बस। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਆਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਲਦ पूरा होएगा। बस मैं भी यही सोच रहा हूँ, परमात्मा बस किसी तरीके से एक बारी स्टार्ट हो जाए और मैं कल्ले बंदे नू अपनी सेवा पहुँचा सकूँ। कैंपर हमारे पहुँच गए हैं लगभग, और कुछ जो कमी रहती है वो भी पहुँच जाएंगे। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ऐसा जी, पेट तो रुखी सुखी खा के भर लेता है किसान है, किसान ने तो हमेशा रुखा सुखा ही खाया है। नमक प्याज से भी पेट भर लेगा किसान, लेकिन पानी के बगैर कैसे पॉसिबल है? काजू बादाम की जरूरत किसानों को नहीं है। पेट भरने के लिए 2 रोटी चाहिए, नमक के साथ हो, चटनी के, दाल के, वो चल जाता है। लेकिन पानी का एक ऐसी चीज़ है, काजू बादाम बिना सर जाएगा लेकिन पानी बिना नहीं सरता। तो बहुत एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो पानी की रहती है। और जब पानी की अगर पूर्ति हो जाए तो फिर मतलब एक तो गर्मी इतनी बढ़ रही है डे बाय डे, बीमार कम पड़ेंगे लोग गंदा पानी पी के, तो मतलब चांस ज़्यादा रहते हैं बीमार होने के, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੋ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਪੀਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਇਲਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। परमात्मा सतबुद्धि दे, अगर सरकार को दिखता तो वो परेशान भी तो सरकार ने कर रखे हैं, किसी और की वजह से परेशान थोड़ा ना है। तो हमारी कोई वो लड़ाई थोड़ा ना भाई किसी और से, हमने हमारी तो लड़ाई सरकार से इसी चीज़ की तो है भाई थोड़ा सा सोचे हमारे बारे में। लेकिन पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अब क्या करेंगे कुदरत, देखते हैं। ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं, चिंता सिर्फ यही है, मैंने सेवा उठी है, परमात्मा सेवा बस मेरी किसी तरह से सिरे चढ़ जाए, सेवा सफल हो और मैं कल्ले बंदे तक अपनी सेवा पहुंचा सकूं। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? मेरे से ज़्यादा टेंशन परिवार को है कि सेवा ना टूट जाए कहीं भी। तो परिवार साथ है, मेरे परिवार ही साथ है, मेरी वही हिम्मत है। मेरी परिवार को देख के मैं घर जाता हूँ तो कहते हैं कि भाई आप आज कोई दिक्कत तो नहीं आई, तो मैंने अब उनको दिक्कत बतानी छोड़ दी। मतलब कुछ और माइंड है वो और ज़्यादा टेंशन ले जाते हैं फिर, तो उनको भी खुश रखना ज़रूरी है। परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता इंसान के लिए। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ? बच्चे तो अभी क्या कह सकते हैं, उनको तो मतलब यही खुशी बहुत है कि भाई हमारे पापा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे भी खुशी है कि भाई चलो बच्चे कम से कम आके जाके
कुछ ना कुछ संस्कार अच्छे लेके। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ कई साथी होणगे, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ कोई सहयोग है? नहीं, किसी से कोई सहयोग नहीं है जी। थोड़ा बहुत सहयोग देखो जो अपने मतलब पंजाब साइड से आ गया या NRI भाइयों का जो सहयोग है उसको तो भूल नहीं सकता मैं, लेकिन इस टाइम जो सिचुएशन है वो सिचुएशन एक सीरियस है। सीरियस मतलब सेवा को जल्दी से जल्दी, एक तो टाइम होता ना हमारे पास, भाई चलो हम 15 दिन 20 दिन महीने बाद कर लेंगे, तो मैं शायद कहीं और से एडजस्ट कर सकता था। अब डे बाय डे गर्मी बढ़ रही है और 1 तारीख से पहले सेवा स्टार्ट करनी है हमने हर तरीके से। तो अब उसमें चलो परमात्मा इज्जत बचाएगा, बस जिसने जिम्मेवारी लगाई है वो संभालेगा, भी देखेंगे अब क्या होता है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਬਾਅ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ? ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ इदा ਤੁਸੀਂ काम? गवर्नमेंट है, अपने 100 हथकंडे होते हैं, लेकिन मेरे को उसकी कोई परवाह नहीं है। अगर मैं घबराने वाला होता तो मैं इतना बड़ा स्टेप 5 महीने में ले रखा है मैंने, तो मैं नहीं लेता। मेरे को उस चीज़ की कोई घबराहट नहीं है, चाहे मेरा होटल तोड़ दे या मेरा मकान तोड़ दे या मेरा कुछ भी कर दे, मेरे को चिंता नहीं है। मेरे को इस टाइम तो सिर्फ एक ही चिंता है, मैं जितना हो सके सेवा करूं बस, और वो सेवा परमात्मा स्वीकार करे बस। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਢਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਢਾਬਾ ਹੈ ਬੰਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਰੂਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਢਾਬਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੰਗਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਢਾਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਬਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ? मैंने तो 30-40 आदमी और एक्स्ट्रा रखे हुए हैं जी लंगर के लिए। तो हाँ, अब मतलब पंजाब में मतलब ऐसा कोई घर नहीं होगा जो ना जानता हो भाई राम सिंह जी हैं। बहुत असीसां लित्तियां ने जी हुण। सच्चे बादशाह की मेहर है, मेरे ख्याल से असीस तो मेरे से ऊपर किसी ने नहीं ली होगी। मैं इस चीज़ का मेरे को गर्व है। मैं थोड़े नाल गल कर रहा, इस चीज़ का तो कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता भाई। असीस मेरे से ऊपर शायद ही कोई भाग्यशाली होगा जो ली हो किसी ने। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। सर जी किसान नहीं है ये भाई हैं, ये इंसान है किसान से पहले। और उस परमात्मा ने, उस वाहिगुरु ने की तो शिक्षा दी है सिर्फ कि आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा का रूप है वो परमात्मा का रूप है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। भगवान को किसी ने देखा थोड़ा ना, किसने देखा? नहीं देखा, लेकिन एक विश्वास है ना कि कुछ तो है जो इतनी बड़ी सृष्टि को चला रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ? नेचुरल सी बात है सर, आप मान के देखो दिल से, आप दर्शन होंगे आपको। ये कोई मतलब ये वो चीज़ है जो कभी भी नहीं मतलब झूठी हो सकती। सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, उसका फल मिलेगा
और परमात्मा है ना, 100 के लाख देता है। मैंने बरता हुआ है, मेरे को तो पता है। मैं तो 17 साल पहले चाय का होका था। आज मैं जो कुछ हूँ, मैं आज 60-70 करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरे पास। ਚਾਹ ਦੇ ਖੋਖੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। बिल्कुल सर, नेचुरल, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बड़ी लंबी कहानी है। अब क्या क्या बैठा है, ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। क्या करें। मैं बस यही है बस शॉर्ट में भाई। मेरा गांव से बच्चा बच्चा जानता है कि भाई हाँ कि मेहनत किसको कहते हैं। जब गांव में कोई बात चलती है तो एग्जाम्पल दिए जाते हैं वहाँ पे, भाई अगर कुछ करके दिखाना है तो उनके जैसा करो, राणा जी। पर मैं मतलब इस चीज़ में अपनी बड़ाई नहीं मानता। मैं चाहता हूँ कोई और भी साथ जुड़े, आगे बढ़े। वो ऑप्शन बहुत होते हैं, लेकिन हम पूरा दिन अपने मतलब स्वार्थ के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, उल्टे सुलटे काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ਉਹੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਰਥੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। सेवा एक, देखो मन है ना, जहाँ मन राजी वहाँ से रब राजी। जो मन मान गया और करना है ये काम, शौक का कोई मोल नहीं। मेरे को शौक है इस चीज़ का, और इसके लिए मेरे को कुछ भी कीमत देनी पड़े, शौक का कोई मोल नहीं। बुजुर्गों ने कहा है, मुझे शौक है। मैं लंगर कोई ऐसे नहीं चलाता भाई खाली लंगर रख दिया दाल फुल करना। वहाँ बर्फी, रसगुल्ले, जलेबी, टिक्की, हर चीज़ चलती है। अब मतलब शौक है तभी तो चलती है, नहीं कैसे पुगा देंगे, नहीं पुगा सकता कोई। लेकिन हम करते हैं दिल से। हमें सिर्फ यही लालच है कि मेरे पास जिसके चरण पड़े, वो घूमता फिरता ज़रूर कहीं घूम ले दिन भर, लेकिन रात को याद आए उसको राणा जी के पास चला, आज ये चीज़ खाने को मिलेगी शाम को। तो बड़ा फर्क है। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ऐसे वो तो एक प्यार ही इतना बन गया, मतलब याद तो आएगी। और मुझे भी शायद आंदोलन ख़त्म होने के बाद भी मैं 15-20 दिन तो इनको जाने नहीं दूंगा। मैं यहीं रुको यार, तुम चले जाओगे तो कैसे अच्छा नहीं लगेगा। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇਸ ਜੋ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੁਗਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ऐसे अजीब, अब गवर्नमेंट ठीक भी है, गलत भी है, हर चीज़ है। लेकिन मेरी लड़ाई ना गवर्नमेंट से है ना किसान से है। मेरी लड़ाई है इंसानियत से। मेरे को जो दिखता है, मैं मेरा किसी मतलब लीडर के साथ कोई रिलेशन नहीं। कभी मैं आज तक स्टेज पे नहीं गया, कभी मैं आज तक आपने होटल से बाहर नहीं देखा हूँगा। मेरा मतलब है मेरी सेवा से, मेरा मतलब है उस परमात्मा से जिसने मेरे को सेवा बख्शी है। मैं बस यही चाहता हूँ कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेवा की जाए और करें। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। बिल्कुल सर, वो मज़दूरों के आज भी फ़ोन आते हैं मेरे पास, और वो कुछ आगे थे वापसी में, और अब भी फ़ोन आ रहे हैं। अभी 4-5 दिन से ही लॉकडाउन के ऑर्डर हुए हैं। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने मेरे को कि भाई दिक्कत हो रही है जी और घर जाना है ये। मगर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जितने की मेरी कैपेसिटी है मैं करूँगा कोशिश, आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਕੁ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ? मैं उस टाइम ज़्यादा नहीं कहता, तो लगभग 10,000 तो होंगे मेरे, मतलब लगभग 100-150 बसों का रेंट। पर मेरे को बड़ी यार, मैं शुरू से ही कुछ ऐसा हूँ बस। 4 साल से कुरुक्षेत्र होटल है हमारा, वहाँ लगातार लंगर चल रहा है, लगातार 4 साल से। ये तो 4 महीने हुए हैं यार, वहाँ तो 4 साल से चल रहा ਹੁਣ है। ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? हाँ हाँ, कंटिन्यू है। वो एक्चुअली ब्रह्म सरोवर है पास में, और वो भी एक बड़ी अजीब सी घटना है। तो ब्रह्म सरोवर है तो वहाँ बुजुर्ग माताएं बहुत से भिखारी भी हैं, वहाँ पड़े रहते हैं जो, तो उनके लिए कंटिन्यू लंगर जाता है 4 साल से, आज तक नॉन स्टॉप रहा है। हेलो, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਸੁਣਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। नहीं, मैं कुछ नहीं दस रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ बस सभी भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ कर सको तो प्लीज़ इस टाइम जो पानी की सेवा परमात्मा ने मुझे बख्शी है और आपके सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने कभी नहीं ये बोला आपको, लेकिन प्लीज़ इस टाइम थोड़ा सा सहयोग करें। सहयोग के बिना गाड़ी मतलब एक बार रिड़क गई ना, फिर राणा जी मतलब बहुत मास्टरमाइंड है, इसको घुमा देगा। लेकिन अब स्टार्टिंग में इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अब स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत है, अब बड़ा प्रोजेक्ट है तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत है। ਲੋਕ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦੇਣ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने ज़िंदगी में आज पहली बार किसी को अकाउंट नंबर दे रहा हूँ अपना, मतलब मीडिया के सामने, अब तक नहीं दिया था 5 महीने में, और अब भी मजबूरी सिर्फ ये है कि भाई किसी भी तरीके से ये सेवा, हमने टाइम ही नहीं है हमारे पास, हमने 1 तारीख से पहले स्टार्ट करनी है। तो मैं गुजारिश करूँगा आपसे हाथ जोड़ के, ये अकाउंट नंबर है तो इस पे आप जो भी आपसे बन सके, इसमें थोड़ा ज़्यादा या कम ज़्यादा की बात नहीं है, जो भी आप हेल्प कर सको, जितनी भी आप कर सको तो इसमें सहयोग ज़रूर करें। इस टाइम हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है, हमने इस लड़ाई को जीतना है, तो वो जीतने के लिए मतलब इस टाइम कुछ हालात ऐसे हैं कि सहयोग एक दूसरे का बहुत ज़रूरी है। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਸਿੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਤਪਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਤਪਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ, ਕਾਜੂਆਂ ਦੇ, ਪਿਸਤਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, TV ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 10, ਭਾਵੇਂ 20, ਭਾਵੇਂ 100, ਭਾਵੇਂ 200, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਜੋ ਹੈ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਗ ਲੱਗੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਵਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਧੰਨਵਾਦ।